Hello guys, welcome to Sepati.in, and today we have with us Mr. Sudeep Gangal, who has appeared for IBPS PO3, and today we are going to be discussing with him his written exam experience, the online exam experience of IBPS PO3 conducted in October-November 2013. So welcome Mr. Sudeep, and thank you for taking your time to give your feedback. And let's get started with this discussion. First of all, we would like to know something about your academic qualification. I am a BTech graduate from Jaipur. I completed my BTech in 2012, and since then I have been working as a freelancer and developing projects for different clients across the world. Okay, that's quite impressive. So, okay, now I'll be asking you questions about your experience of the IBPS examination. So, Mr. Sudeep, how much marks did you score in the examination? I secured 79 Oh, that's marks. quite good. And what was the cutoff, if you could share it with us for your category? It was Oh, 61. I belong to the general okay, category. that's you scored quite good. And what was your mode of studies? For example, like did you refer to any coaching or self or online? See, frankly speaking, for this IBPS PO, I didn't strive much hard. But the biggest thing was that I prepared well for SBI PO held in April 2013. So the experiences and the learnings from there helped me in this whole Okay, so examination. that means that preparation you carried forward to the IBPSP examination. That's quite Yes, great. That's yes, great. yes. Because in such a huge time gap, people used to get off the track, but you maintained it quite well. So okay, so before you went to give the examination, as you know that this is one of the biggest examinations in the country for any government post after SSC. What was your mindset before you enter the examination hall? See, before entering the examination hall, I was pretty sure that I had no type of pressure on me since I have not prepared for this exam at all, and I was just giving it to prepare myself for future. Okay, but the thing was that I was see that I had a thing in my mind that while I gave the IBPS Specialist Officer exam in February 2013, I just Okay. missed the cutoff by 2 marks. The cutoff in that paper was 137. So in my mind, it was like that a minimum of 135 questions in this exam could help me to clear this examination Okay. level. So how many questions did you attempt this time? In total, I attempted Okay, 150 questions. that's quite a nice number, which means you were quite fast enough. ओके सो अब हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे, क्या आप ये बता सकते हैं कि एग्ज़ाम को में अटेम्प्ट करने से पहले आपने क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, कोई स्ट्रेटजी फॉलो की थी? बिकॉज क्योंकि ये एग्ज़ाम जो ऑनलाइन है, स्पीड इसमें काफ़ी मैटर करती है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पेपर अटेम्प्टिंग के लिए? देखिए स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी थी। स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को उस चीज को सबसे पहले अटेंड करना है जो मेरे को आती है। ठीक है, जैसे क्वांट है, क्वांट में मेरे को जो है वो अपना जो स्पीड मैथ्स का सेक्शन है वो सबसे पहले अटेंड करना है, और डीआई के वो क्वेश्चन को ढूंढना है जो कि सिंपल, जिनके आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन पे खेलना है और हर क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करना है जैसे ये जो ओके, है वो क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, मतलब आपको एक पेपर के अंदर जब आप घुसते हो देने के लिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आता है। अगर आपका ये माइंडसेट होगा तो आपका पेपर का जो आउटपुट है वो जरूर आपका इंक्रीज ओके, हो जाएगा ओके। कुछ परसेंट से। तो सुदीप, हम सब जानते हैं कि आईबीपीएस एग्जामिनेशन में जीके सेक्शन जो है वो काफ़ी टफ माना जाता है, और अगर स्टेट्स देखे जाएं तो हाँ जी। मेरा मानना ये है कि करीबन 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ओवरऑल कट ऑफ और बाकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं, पर केवल जीके सेक्शन की वजह से पेपर क्लियर करने से रह जाते हैं।
तो उस सेक्शन के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी उसके लिए? देखिए, क्योंकि मेरा काम अपना ऑनलाइन रहता है, तो मैं जो है वो अपना लेटेस्ट न्यूज़ से बिल्कुल अटैच रहता हूँ। आई हैव अ प्रैक्टिस टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड इकोनॉमिक टाइम्स। उसकी वजह से जो है वो मेरे को बैंकिंग न्यूज़ और मेरे को जो डेली अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो मेरे को पकड़ में आ जाती है। सेकेंडली, मेरा ये मानना है कि ऐसे पेपर्स के अंदर जो न्यूज़ है वो 6-7 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं आती। जो जीके होती है वो 6-7 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं आती है। तो अगर अपन एक चेक रखा हुआ है अपन ने और अपने दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, तो हम लोग जीके के ओके, का 60% ओके, पोर्शन निकाल थैंक यू सकते वेरी हैं। मच फॉर दैट। एंड पेपर में आईबीपीएस के लिए अपियर होने से पहले आपने, आपके वीक एरियाज क्या थे? उसमें 5 सेक्शन होते हैं, उसमें वीक एरियाज कौन से थे और आपने किस तरीके से उन पे काम किया? देखिए, मेरा जो वीकेस्ट सेक्शन है वो मैं मानता हूँ कि जो अपने सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, जिसमें मल्टीपल हायरार्की होती है, मेरा वीकेस्ट सेक्शन। तो मेरे पास दो प्लान थे। पहला प्लान ये था कि अगर मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, और अगर मेरे को लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं एक ट्राई दूंगा, 2-3 मिनट ट्राई दूंगा। अगर हो गया सॉल्व तो सही है, वरना फिर उसको मैं आगे अटेम्प्ट नहीं करूंगा, अपना टाइम बचाऊंगा उसके अंदर। प्रैक्टिस के लिए मैंने इसकी अपने घर पे मैंने एक पूरी रीजनिंग की बुक लेके आया था, जो कि मेरे को अपने इंस्टीट्यूट से मिल गई थी। उस बुक के मैंने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं ऐसे क्वेश्चन को अपना कर सकता हूँ। सेकेंडली, मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती थी। कॉम्प्रिहेंशन एक टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कई बार आपके आंसर मैचअप नहीं करते। उसके लिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक अलग से अपना प्रिपेयर करा था। और बाय गॉड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस विश टू यू फॉर मेरा दैट। आईबीपीएस एंड का रिटर्न अब क्लियर हम हो ये गया। जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जो कि ये वीडियो देखेंगे और जो कि आने वाले टाइम में आईबीपीएस और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स भी हैं, अब उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से प्रिपरेशन से रिलेटेड, किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर उन्हें जरूर? बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हर एस्पिरेंट को जो है वो लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेना चाहिए। अपने को अपनी उनकी जो अपना प्लानिंग होगी वो इस कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर की रखनी चाहिए। कि हमें इस कट ऑफ से 20 नहीं, सॉरी, उस कट ऑफ से हमें जो है वो कम से कम 40 नंबर ऊपर लेके आने हैं। पहले तो वो प्लानिंग होनी चाहिए अपनी। उसके बाद अपने को हर सेक्शन वाइज क्या क्या कंटेंट आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं, अपने को उसका पूरा पता होना चाहिए, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का, कि ये पक्का आएंगे और इसे क्वांटम में आएंगे। अगर अपने को पता है तो अपन पेपर को प्लान कर सकते हैं। थर्डली, जब वो पेपर देने जा रहे हैं तो जाने से जस्ट पहले उनको पढ़ना नहीं चाहिए। 2-3 घंटे की पढ़ाई में पेपर नहीं निकलते। पढ़ना नहीं चाहिए और अपने दिमाग को फ्रेश माइंड से जाना चाहिए। पेपर में ये बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे को ये पेपर आता है और मैं इसको निकालूंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आप अपने में रखेंगे तो Okay, thank you आपका very बहुत much. अच्छा आउटपुट आएगा I'm sure that मेरे our हिसाब viewers से। will appreciate that, and they will we definitely get benefit from that advice. So हमारी तरफ से क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं, अपनी तरफ से कुछ और शेयर करना चाहेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड? Okay, thank you very much for taking your time, Mr. Sudeep, नहीं, and अभी once थैंक यू। again we wish you very good luck for your future endeavors. Thank you.